अच्छा आपने नोट किया स्टूडेंट्स यस मैम। आवाज यस मैम आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है आपको मैंने अभी हमारे पास 1 मिनट है तब तक मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और मैंने जो आपको कल बोला था ना पढ़ने के लिए वो आपने पढ़ा है मलिहा मलिहा क्लास में है जरा अनम्यूट कीजिए मलिहा मैम तो हमें आज ये पढ़ना है वाइल्ड लाइफ यस मैम मैम हमने 5 नेचुरल वेजिटेशन तक किया था ना कंप्लीट। अच्छा अच्छा इसको स्टार्ट करने से पहले लेट्स मैम गिव और अ आपने लुक बोला ऑन था मैं आपको कल क्वेश्चंस पूछूंगी जितना भी हाँ हमने इस चैप्टर में पढ़ा। हाँ जरा मुझे बोलो ये 1 मिनट में देखती हूँ किसको मैं पूछूंगी आप तो हमेशा जवाब देती शुगुफ्ता हमेशा शुगुफ्ता तीन फोन से ज्वाइन कर रही है और एक भी ज्वाइन नहीं हो रही है और हमेशा का इसका यही होता है आती है जाती है पूरे टाइम मुझे उसको एडमिट करना होता है बस और दूसरी खान सादिया मैडम आपका क्या रोल नंबर है बेटा खालिद व्हाट्स योर रोल नंबर राइट अरफात लोन Arfat Roon, write your roll number, otherwise I will not mark you present. Khalid, write your roll number, I will not mark you present. Khan Sadia, write full name, what is your name? Sadia what? And write roll number. And who else is without roll number? Nobody. So you three just edit your names. Arfat Loan 21, very good. Khalid, rule number nahi hai, it's roll, R-O-L-L. Okay, then Khan Sadia. Let me see where she is now. Sadia Parvez, that's good. That seems nice and decent. Okay, सही है. आप शाहिद शफी खान सादिया अनम्यूट कीजिए. Sadia Parvez, roll number 28, unmute yourself quickly. Yes ma'am. Okay, see in the page which I have shared on the screen, you will see Leela parents. Can you see that in a yellow box? Leela parents planted a sampling of a neem to celebrate her birth. Have you seen it? Can you see this? आप ये देख रही हो जो yellow में है mark करके? Yes ma'am. Okay, you just read it aloud and then explain to us. आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes ma'am. Very good. Read aloud and explain. Try to explain this. Fine. Try करना Leela, जरूरी. Very good. Leela's parent planting a sapling of neem to It's celebrate. sapling. Listen, it's sapling. It's not sibling. It's sapling. Let me zoom it. Okay, carry on. Carry on. Sapling of neem. Again, it's sapling. It's S-A-P, sap, L-I-N-G, ling, sapling. Sapling of neem to celebrate her birth. On each birthday, a different sapling was planted. It Very good. was Watered. watered regularly and protected From from severe. severe heat, cold and animal. It's Children not look cold. Listen, it's cold. cold and animals. Very Children, good. मैम look है कि took है? It's took. You don't have book. Why you are reading from screen? That's Took what you're supposed to. Everyone is supposed to keep the book in front of you. I will check it now afterwards. इसके बाद मैं check करूँगी book किसके पास. took care not to harm it when Leela was 20.21. Beautiful trees stood
in and around her house. Birds built their nests on their flowers. On them. On them flowers bloomed. Butterflies Fluttered. fluttered around them. Children enjoyed their fruits Swung. swung on their branches and played in their shade. वेरी गुड। आप उसको समझा सकती हो? मुझे नहीं लगता है। सादिया, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए आप रीडिंग भी नहीं कर पाते। आप इंग्लिश में रीडिंग नहीं करती हो क्लास में। अब मैम कितनों को रीडिंग कराएगी, आपको खुद नहीं रीडिंग करनी है। अगर जितनी रीडिंग आप करोगे उतनी अच्छी आपकी ये रीडिंग स्किल्स हो जाएंगे। अरफात लोन 21, अनम्यूट योरसेल्फ। Arfat Loan 21, unmute yourself. जो अनम्यूट नहीं करेगा उसको मैं एब्सेंट लगा दूंगी और मोरेवर उसको क्लास से मैं रिमूव कर दूंगी। फिर बाद में कंप्लेंट नहीं करना कि मैम ने क्लास से रिमूव किया, मैम डांटती है। Arfat Loan, this is last warning now. Unmute yourself quickly. If you don't want to read it, still unmute yourself. Arfat Loan, unmute yourself quickly. मैम पढ़िए इसको। मुझे फोन आया था इसीलिए। क्या था? फोन। आप क्यों फोन अटेंड करते हो ड्यूरिंग क्लास? आपको नहीं पता ड्यूरिंग क्लास फोन अटेंड नहीं करना होता है? चलिए पढ़िए इसको। किसको? जो स्क्रीन पे मैंने डिस्प्ले किया है। अच्छा नहीं पाया मैम क्या पढ़ना हो? आपको ये भी नहीं पता मैम पढ़ा क्या रही है, मैम ने बोला क्या है। इतने आप लोग बिजी हो अपने काम के साथ। ये जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे रखा है लीला's पेरेंट्स, उसको मैं जूम कर रही हूँ Yes, बार ma'am. बार। चलिए पढ़िए। Leela's parent planting a प्लांटेड है बेटा। इट्स planted a sapling of It's not sapling, it's neem. sapling of neem to celebrate her birth. On each birthday a different sapling was planted. It was very good. It was watered regularly. It was watered regularly and Protected from severe hot, cold and heat, cold it's and not hot. Yeah. Heat, cold and shabash. heat, cold and animals. Children took care not to harm it. When Leela was 20, Leela was 21. 21 birthday beautiful trees so in and around her house bird may be built their nests on them. Built their nests on them. Flowers Bloomed
Butterfly fluttered. fluttered around them. Children enjoy their fruits sweet on their Swung on their branch and played in their chair. मुझे लगता है मैं English class में हूँ. I feel like I'm in teaching you. I'm an English teacher. क्योंकि आप लोगों को मैं रीडिंग करा रही हूँ. मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ पढ़ने के लिए. आप लोग को मैं इसलिए बोल रही हूँ पढ़ने के लिए. मैंने सोचा आप लोग समझाओगे जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ. उसके बाद जो इसमें साइड में जो डू यू नो या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आपको खुद बोलती हूँ पढ़ने के लिए. आप लोग पढ़ नहीं पाते हो, आप लोग रीड नहीं कर पाते, तो आप लोग क्या पढ़ते होंगे घर पे? मैं सोफिया. सोफिया. Okay, ma'am. Leela's parents planted a sapling of neem to celebrate her birth. On each birthday, a different sapling was planted. It was watered regularly and protected from sun, heat, cold, and animals. Children took care not to harm it. When Leela was 20 or 21, beautiful trees stood in around her house. Birds built their nests on them. Flowers bloomed, butterflies fluttered around them. Children enjoyed their fruit, swung on their branches, and played in their shade. ये बोलता है कि लीला के जो पेरेंट्स है वो हर वक्त एक सैपलिंग मतलब जो थोड़ा सा प्लांट चढ़ा होता है वो उगाते थे नीम का, ताकि वो उसका बर्थडे जो है सेलिब्रेट कर सके. उसका जो बर्थडे था वो हर बर्थडे पे उसको सैपलिंग प्लांट करते थे और उनको हर वक्त पानी देते थे, रोज रोज पानी देते थे. और उनको नीम का या कोई और जो सैपलिंग होता है वो होता है छोटा सा सीड में से जो छोटा सा प्लांट होता है वो ही उगाते थे. और हर बर्थडे पे वो हर कोई भी सैपलिंग उगाते थे. एक दिन उनने जब सैपलिंग इस बर्थडे पर नीम वाला उगाया था, नीम वाली सैपलिंग उगाई थी और उसको हर रोज पानी देते थे और प्रोटेक्ट करते थे सर्व हीट से, कोल्ड से भी, ठंड से भी करते थे और एनिमल से भी, जानवरों से भी करते थे. चिल्ड्रन जो है वो ख्याल रखते थे ताकि इसको कोई खतरा ना हो, मतलब कोई इसको साथ छेड़े ना. और जब लीला जो है वो 20 इयर्स की हो गई और या तो 21 इयर्स की जब हो गई, बहुत सारे अच्छे खूबसूरत से ट्रीज वहां पर थे उसके आसपास, उसके घर के आसपास और उसके भी आसपास थे. बर्ड्स जो है तब जब ट्रीज होते हैं तो बर्ड्स जो है नेस्ट्स बनाते हैं ट्रीज पे. बर्ड्स ने बहुत सारे नेस्ट्स बनाए थे इस ट्री पे और जो फ्लावर्स है पेड़ के वो भी खिल गए थे. बटरफ्लाइज जो थे वो भी उड़ रहे थे इसके आसपास. और बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे थे फ्रूट्स को. जो फ्लावर ट्रीज होते हैं उनमें से फ्लावर्स निकालते हैं, फ्रूट्स निकालते हैं, तो वो फ्रूट्स को खाते थे और उसको एंजॉय भी करते थे. स्विंग जो होती है और उस पे ब्रांच पे उसको भी प्ले करते थे, मतलब खेलते थे उस पे भी. और शेड में मतलब स्विंग जो थी वो शेड में होती और जो ये खेलते थे उसके साथ. यही था इस वाले येलो बॉक्स में लिखी. थैंक यू मैम. अब मैं बोलूं इसका मतलब? ओके. जरा मुझे एक बात बोलो, ये जरा ये जो है ना ये डायग्राम क्या है? ये सेल बाइंडिंग. यस मैम. जरा ये पढ़ो आप क्या लिखे. तो यहाँ पर जो इसका मतलब है, यहाँ पर ये इसलिए यहाँ पे ट्रीज बनाकर है, फिर यहाँ पर कुछ ऐसे ही कुछ पिक्चर्स बनाकर है. तो इसका मतलब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हम क्या क्या, मतलब जो पेड़ होते हैं हमें उनसे क्या क्या चीजें मिलती हैं. सो पहले ही हमें उनसे क्या मिलता है? सबसे बड़ी बात, हमें उनसे ऑक्सीजन मिलता है. जिस टाइम इस वक्त जिंदा है तो वो हमारे वक्त इस वक्त हम अगर जिंदा है तो ऑक्सीजन की वजह से. तो
हम जो है हमें पेड़ से ऑक्सीजन भी मिलता है और मेडिसिन भी मिलता है, ठीक है। मेडिसिन जो हम दवाई ववाई खाते हैं वो भी हमें पेड़ों से ही मिली हुई होती है। और शेल्टर, अब आप बोलोगे कि शेल्टर कैसे मिलता है, क्योंकि जो फर्नीचर मिलता है, आई मीन मतलब जो लकड़ी होती है उससे भी हम अपना शेल्टर बनाते हैं। और फूड, मतलब हमें इसके साथ बहुत सारी चीजें मिलती है और हमें उसके साथ स्पोर्ट्स के कुछ चीजें या फर्नीचर मिलता है। मैंने आपको पहले बोला फर्नीचर जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं, टेबल बेंच, स्पोर्ट्स की चीजें या फ्यूल, या फिर अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो फ्यूल है वो भी हमें ट्री से मिलता है। और रबर, एक तो रबर वो वाला रबर जो हम टायर्स में लगाते हैं, और दूसरा रबर जब मतलब पेंसिल और इरेजर होता है ना, वो वाला इरेजर और रबर भी। और टिम्बर मतलब जलाने वाली लकड़ी। और नेचुरल हैबिटेट वाइल्ड लाइफ के लिए, तो मतलब यहाँ पे जो नेचुरल हैबिटेट वाइल्ड लाइफ के लिए, इसका मतलब क्या है कि मतलब जैसे कि अगर आप देखो फॉरेस्ट में जो है पेड़ उन वाइल्ड एनिमल्स को अपने हैबिटेट में रखते हैं। मतलब हैबिटेट क्या होता है, माहौल, मतलब किस माहौल में रहता है इंसान। तो वैसे ही जो है नेचुरल हैबिटेट में भी हेल्प करते हैं ये ट्रीज वाइल्ड एनिमल्स के लिए। गम एंड लैंड, और अब यहाँ पे जो गम का मतलब है वो वाला मतलब है, मतलब गम ग्लू जिससे हम पेपर को चिपकाते हैं। तो मेरे ननिहाल में ऐसा वाला एक पेड़ है जिससे कि वो उससे पेड़ से नहीं निकलता है। मतलब जो जैसे कि अगर हम देखें, अगर हमें ट्री से फ्रूट्स मिलते हैं तो हमें वो जो है मतलब जहाँ पर ट्रीज, जहाँ पर लीव्स होता है वहां पर वो होता है, लेकिन ग्लू ऐसे नहीं होता है। जैसे कि वुड होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखा कर है, मतलब अगर आप यहाँ पर ट्री देखो सॉइल बिल्डिंग के पास, तो यहाँ पे जहाँ पे सॉइल बिल्डिंग लिखे है वहां पे वुड है, मतलब स्टेम जो होता है ट्री का, वही से वहां पे वो छोटी छोटी गैप्स से ग्लू निकलता है। और वो इतना स्ट्रॉन्ग ग्लू होता है कि अगर आपको किसी पे अगर आप अपने हाथ पे लगाओ तो आपके हाथ चिपक सकते हैं। क्योंकि मेरे ननिहाल में है वो वाला प्लांट, तो मुझे वो वाला ट्री, वो बहुत ही बड़ा ट्री होता है और वो जो है उसमें गम निकलता है। और फ्रूट्स भी और वेजिटेबल्स, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम खाते पीते हैं, वो सब कुछ हमें पेट से मिलता है। और हनी, अब हनी जो है मतलब हनी का मतलब है ना ये हनी, और हमें इससे हनी भी मिलता है जो हमें हनी बी से देता है। तो ये यहाँ पर लिखा था। अब मैं वो वाला पढ़ूंगी जो येलो कलर का, जो येलो कलर के बॉक्स में है। Leela's parents planted a sapling of neem to celebrate her birth. On each birthday, a different sapling was planted. It was watered regularly and protected from severe heat and cold and animals. Children took care not to harm it. When Leela was 21, beautiful trees stood in and around her house. Birds built their nests on them, flowers bloomed, butterflies fluttered around them, children enjoyed their fruits, swung on their branches and played in their shade. तो क्या होता है कि लीला जो है, लीला के जो पेरेंट्स हैं, वो हर किसी बर्थडे, मतलब अगर किसी का बर्थडे होता था तो फिर वो लोग वहां पे एक सैपलिंग ऑफ नीम, मतलब वो किसी का पेड़ लगाते थे, यहाँ पे नीम का पेड़, मतलब वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहां पे वो लोग नीम का प्लांट लगाते थे। ऑन ईच बर्थडे आर डिफरेंट सैपलिंग वाज प्लांटेड। और हर किसी मतलब डिफरेंट डिफरेंट बर्थडे पे वो लोग क्या करते थे, वो लोग डिफरेंट काइंड के ट्रीज लगाते थे। और वो लोग फिर इन ट्रीज को रेगुलरली मतलब रोज रोज वाटर देते थे जिससे वो जिंदा रह सकते हैं। और वो उनको प्रोटेक्ट करते थे, मतलब अगर पेड़ों को ज्यादातर हीट लगती है तो वो सूख जाते हैं, मतलब वो खराब हो जाते हैं। और अगर उनको ज्यादा ठंड लगती है तो फिर वो मुरझा जाता है। तो वो लोग जो है ना ही वो लोग उनको प्रोटेक्ट करते थे हीट से भी और कोल्ड, मतलब वो उनको वो वाला टेम्परेचर देते जो उनके लिए अच्छा होता था। और वो उनको एनिमल्स, मतलब अब एनिमल से वो उनको क्यों बचाते थे, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो जो हर्बीवोर यूजुअली होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खाते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनका खाना तो यही होता है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन ग्रास वगैरह। तो वो लोग जो है एनिमल से भी उसको प्रोटेक्ट करते थे ताकि उसको कोई एनिमल ना खा जाए। और जनरल जो है वो उनको बहुत ही वो उन पेड़ों को बहुत ही ज्यादा किया करते थे, ठीक है। वो उनको दिन ब दिन वाटर देते थे और उनको देखते थे कि सनलाइट पहुंच रही है, जो भी फोटोसिंथेसिस में आता है वो उनका पहुंचना चाहिए और उनका टेम्परेचर अच्छा रहना चाहिए। और फिर जब लीला 20 ईयर्स की हो गई या 21 ईयर्स की, ऐसा ही कुछ हो गई वो, तो फिर उसने जब देखा कि वहां पर जो मतलब लीला का जो बर्थडे था वो तब छोटी थी, तब उसके पेरेंट्स ने वहां पे एक सैपलिंग नीम लगाई लगाई थी। फिर जब वो 2021 की हो गई, फिर उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे खूबसूरत पेड़ देखे अपने इर्द गिर्द।
और उसने बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स देखे और और उन्होंने ऐसा देखा कि जो बर्ड्स है मतलब जो परिंदे हैं उन्होंने अपने एक नेस्ट बनाए थे, मतलब जिसमें रहता है। यूजुअली अगर आपने देखा होगा हर किसी जगह पे अगर किसी के घर में पेड़ होता है तो यूजुअली वहां पे मैक्सिमली किसी ना किसी बर्ड ने जो अपना नेस्ट बनाया होता है, तो वहां पे वो क्या देखती थी, अपने पेड़ों पर नेस्ट भी। ठीक है, वो नेस्ट किसने बनाए थे, बर्ड्स ने। और वहां पे फ्लावर ब्लू, मतलब जब फ्लावर अच्छे खिल रहे होते थे तो वो भी उसने देखा अपने इर्द गिर्द। और बटरफ्लाई जो है वो फ्लटर, मतलब वो उड़ रही थी उन पेड़ों के इर्द गिर्द। यूजुअली जो है बटरफ्लाई जो है या किसी फ्लावर का भी मतलब रस चूसती है। तो क्या होता है कि वहां पे उसने वो भी देखा कि बटरफ्लाई जो है वो फ्लटर कर रही है, मतलब उड़ रही है, और वो पेड़ों पर भी बैठी हुई थी। और चिल्ड्रन जो है, मतलब जो बच्चे हैं, उन्होंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया उन फ्रूट्स को। मतलब मैंने आपको पहले ही इसके नीचे जो डायग्राम दिखाई, मैंने आपको पहले बोला हमें इनसे फ्रूट्स भी मिलता है। तो जो चिल्ड्रन है उन्होंने एंजॉय किया था उन फ्रूट्स को, उन मतलब मेवों को। और वो लोग जो है ब्रांड्स के नीचे, अगर आपने देखा होगा अगर हम कहीं भी जाते हैं या अगर हम कई जगह पे चल रहे होते हैं तो यूजुअली हम छांव साइड से, मतलब अगर कहीं पे पेड़ लगा होता तो उनकी ब्रांचेस से हमें छांव मिल जाता था। तो वहां पर भी उन चिल्ड्रन ने एंजॉय किया था उन फ्रूट्स को, और वो लोग ब्रांच के नीचे शेड में बैठे हुए थे। थैंक यू। पढ़ा आपने मलिहा? अब हम वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे। हमें जो है थोड़ा वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट्स आर होम टू वैरायटी। अब मैं वाइल्ड लाइफ के बारे में मैं आपको पहले ओवरव्यू दूंगी, इससे पहले कि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊं, पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू बोलती हूँ। ठीक है, मतलब कि जैसे हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, जैसे अभी आप देख रहे हो बहुत सारे न्यूज़ में आता है कि भाई जी जो बेयर है वो गांव में आ गया। जैसे पिछली बार जो हमारे लेपर्ड का जो इंसिडेंट हुआ था, लेपर्ड आया था नीचे, उसने उस छोटी लड़की को लिया, या ऐसे बहुत सारे केस। मतलब सबसे मेन फैक्टर जो है, मेन वजह जो है इन चीजों की, पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वही है ना, अब उसकी क्या वजह है पहले मैं आपको उसको बोलती हूँ। ठीक है, जो भी ये होता है, जो अब टाउन और सिटीज में अब जो वाइल्ड एनिमल्स आने लगे हैं, उनकी मेन वजह कोई बता सकता है मुझे क्या है? मैंने बहुत बार आपको क्लास में बोला है, मेन फैक्टर क्या है? मैम किसका मेन फैक्टर? जो मैं आपको बता रही हूँ, जो वाइल्ड एनिमल्स सिटी में, टाउन में जो आ रहे हैं, ये डायरेक्ट पहले क्यों नहीं आते थे? मैम अब मैं क्यों बोलूं? जी मैम मैं बोलूं? बोलिए बोलिए। मैम क्योंकि जो इनका हमने फॉरेस्ट जो है डिस्टर्ब किया, तो इसलिए सिटी में आ रहे हैं वो एनिमल्स डिस्टर्ब जो कैसे हो गया वाइल्ड। इनका फॉरेस्ट? अब मैं हम बोलूं मैम? वुड लाते हैं, लकड़ियां लाते हैं, तो उसके लिए पेड़ काटना पड़ता है। अगर हमें कुछ फ्रूट जरूरत होते हैं तो हम पेड़ काटते हैं, जंगलों में जाते हैं और पेड़ काटते हैं। इस वजह से इनको रहने की जगह थी वो पेड़ ही था, मतलब पेड़ के आसपास ही रहते थे, पेड़ों के आसपास ही रहते थे। इसलिए जब इनका फॉरेस्ट हमने डिस्टर्ब किया तो इसलिए ये सिटी में आ गए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ मलिहा बोलिए आप। तो ये लोग जो है, अगर हम देखते हैं दिन ब दिन हम ये न्यूज सुनते हैं कि यहाँ पे आज सिटी में कोई चीता या वाइल्ड एनिमल है, तो इसका रीजन ये होता है कि क्योंकि जो हम होते हैं तो हम ह्यूमंस वहां जाते हैं, उनका सब कुछ डिस्टर्ब करते हैं, वहां से वुड लाते हैं। हमें वुड नहीं काटना चाहिए, ना ही हमें पेड़। अब वुड लाने के लिए तो हम पेड़ काटते हैं, जो कि इनका सब कुछ होता है। मतलब जैसे कि हर्बीवोर होता है वो तो ट्रीज ही खाता है, तो उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता है। फिर भूखे प्यासे जब उनका सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर वो फ्री में आता है, और यहाँ पे फिर वो यहाँ पे भी फिर वो हमारी स्टडी डिस्टर्ब कर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो यही फैक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में क्या होता है, वो जो है बेसिकली डिस्टर्ब कैसे हो जाती है, वही है मेन फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन। जो डिफॉरेस्टेशन जो है ना, उसकी वजह से क्या था, जब पेड़ सारे कटने लगे, फॉरेस्ट नेकेड होने लगा, मतलब वो अब वहां पे सीधे दिख रहा है। तो ये जो है वाइल्ड एनिमल्स, ये अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले बहुत सारा पेड़ थे, ये जंगलों में घूमते थे, इनको कोई नहीं देखता था। जो ही पेड़ कटने लगे तो वैसे भी सनलाइट डायरेक्ट उन पे पड़ने लगी, उनको कुछ लगा कि खालीपन है, तो वो उस शेल्टर की तलाश में दाएं बाएं घूमते हैं।
और फाइनली वो टाउन में आ जाते हैं। अब दूसरी वजह ये भी है कि जब क्या हो जाता है, हंटिंग हो जाती है, शिकार हो जाते हैं, तो जो मतलब जैसे ऑब्वियसली कार्निवोर्स एनिमल्स है वो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते थे, लेकिन जब ह्यूमंस ने ही उन एनिमल्स को मारा तो वो एक्सटिंक्ट हो गए, तो उनको अपने शिकार मतलब खाने की तलाश में तो जाना पड़ेगा ना कहीं ने, तो अल्टीमेटली वो ह्यूमंस को अटैक कर रहे हैं वो नीचे, क्योंकि जंगल से जब वो नीचे जाएंगे वहां उनको कौन मिलेंगे, बस्ती मिलेंगे, बस्ती में कौन मिलेंगे, लोग मिलेंगे, तो ऑब्वियसली वो किसको अटैक करेंगे, ह्यूमंस को। सो इस पे ब्लेम करना कि जानवर ने इसको खाया उसको खाया, उससे अच्छा है कि हम जो है अपनी एक्टिविटीज को रोके। उसमें क्या आता है, उसमें सबसे जो मेन फैक्टर होता है डिफॉरेस्टेशन और हंटिंग, जो हंटिंग ऑफ एनिमल्स है वो हमें स्टॉप करनी है, तो ऑटोमेटिकली ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो जो है सिटी की तरफ रुख करना छोड़ देंगे, एंड दे विल लिव एज दे वर लिविंग अर्लियर इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो पहले मैंने आपको ये ओवरव्यू दे दिया। तो अब जो है ये वाइल्ड लाइफ, ये आप खुद ही पढ़ोगे वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये मैं आपको 2-3 मिनट उसी के लिए दे रही हूँ, इसको आप पढ़ोगे, कल मैं आप सबसे पूछूंगी, कल कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। और जिसको भी रीडिंग में प्रॉब्लम है, कल सलमान, सादिया, सब्बा, कुदसिया, निदा, मेहरा बशीर, खालिद, अरवा और अरफात लोन, ये सब कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।